Greetings students. So in the previous module, we discussed about the chemical properties of metal. We discussed the first chemical property, how metal reacts with the air or oxygen. So we discussed during that topic that there are certain metals which react easily or even at the room temperature, there is no heating required. There are certain metals which need simple heating at ordinary temperature. There are certain metals which need very high temperature. On that high temperature they will react with the oxygen to form their oxides. So now the next chemical property that we have to discuss is the how metals react with the water, कि metal जो है वो water के साथ कैसे react करते हैं. So there are two ways by which metal react with the water. So here I have written the general reaction. Metal react with the water to produce metal hydroxide plus hydrogen gas. तो जनरल रिएक्शन इज कि मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जनरली वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. और यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस कि मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. एंड हाउ वी कैन डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय यूजिंग पोप साउंड टेस्ट. व्हेन वी बर्न दैट हाइड्रोजन गैस और बर्निंग स्प्लिंटर को हम हाइड्रोजन गैस के पास लेके आते हैं, so they will produce a pop sound, and this is the identification test for hydrogen gas. So if someone asks you what will happen when metal react with the water, metal react with the water to produce metal hydroxide and they will release hydrogen gas. So there are certain metal that react with the water to produce hydroxide and hydrogen gas, but there are few metals that do not react with the water, they react with the water in their steam form. कि steam के साथ अगर हम certain metal को react करते हैं तो product जो है वो थोड़ा सा different होता है. One product is same, कि अगर आप error नहीं करना चाहते तो you can directly write metal react with the water to release hydrogen gas. तो उसमें दोनों cover हो जाते हैं. So there is an error, I have accidentally written oxygen. So same in the second case, metal react with the steam to produce metal oxide plus hydrogen gas. तो hydrogen gas तो दोनों में रिलीज होगी, but there are certain metal जो water से react नहीं करते, वो steam से react करके oxide बना लेते हैं, लेकिन generally जो metal होते हैं water से react करके hydroxide बनाते हैं. So we will discuss the examples of metals one by one. So generally we divide metals into few categories depend on their reactivity. कि कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर लेती हैं, ठंडा पानी हो गर्म पानी हो उसके साथ वो रिएक्ट कर लेती हैं. दे जनरली रिएक्ट वॉयलेंटली, कि वो जब वो रिएक्ट करती हैं तो इट मेटल विल कैच फायर और वो पॉप साउंड, एक्सप्लोजन का भी साउंड प्रोड्यूस होता है. तो देयर आर सर्टेन मेटल विच रिएक्ट वॉयलेंटली विद द वाटर, कि गर्म पानी है ठंडा पानी है उनके साथ वो रिएक्ट करेंगे और ब्लास्ट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. Second category of metals are those which do not react with the cold water, कि ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, पानी को हमको गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो मेटल वाटर के साथ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगी. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ metals which do not even react with the hot water or even with the cold water, ना तो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ. तो थर्ड कैटेगरी ऑफ third category of metal which only react with the steam, not even with the cold water or even with the hot water. Fourth category of metals are those which do not react either with hot water, cold water or even with the steam. तीनों में से किसी के साथ react नहीं करते, मतलब वो पानी के साथ react करते ही नहीं है. So now we will discuss them one by one. So first we will discuss those metals which react violently, बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छे से वो रिएक्ट करती हैं और इवन इट कैचेस फायर, आग भी लग जाती है और ब्लास्ट का साउंड भी प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद द वाटर, दैट इज द कोल्ड वाटर, एंड दे रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड. सो NaOH प्लस hydrogen. So you can write under this name sodium hydroxide. Similarly the second reaction, potassium is also a reactive metal. It reacts with the water to produce potassium hydroxide plus hydrogen gas. So these two reactions are highly exothermic reaction, मतलब इतनी ज्यादा हीट निकलती है, साथ में तो हाइड्रोजन रिलीज हो ही रही है,
तो इट लीड्स टू फायर। आग क्यों लग जाती है इसके अंदर? क्योंकि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो इतनी सारी हीट निकलती है, उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई होती है हमारी, वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेती है और वो क्या बना लेती है, वाटर। तो इतनी ज्यादा हीट निकलती है इन दोनों रिएक्शन में से कि उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो जलना शुरू हो जाती है, और जलने पे क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस वाटर। तो इसलिए वो एक्सप्लोजन वाला साउंड प्रोड्यूस होता है जब इन दोनों मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो आई होप दीज टू मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज, आई एम स्लाइटली इरेजिंग फ्रॉम हियर, राइटिंग है कि वो आग क्यों लग जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं, और ऊपर से क्या होता है, जो पॉप एक्सप्लोजिव साउंड, एक्सप्लोजन वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, वो इस रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड, थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज अंडर दिस सेम कैटेगरी, कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करती है वो क्या होती है, कैल्शियम। तो कैल्शियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड plus water. So you have to write the names under them, calcium hydroxide plus hydrogen, क्योंकि मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। So one question that comes from this third reaction in your board exam, कि when we put calcium metal into the water, it starts to float, वो तैरने लग जाती है सरफेस के ऊपर, and write the reason and also write the chemical reaction in the 2 marks, कि वो फ्लोट क्यों करती है जब पानी में डालते हैं, एंड द सेकंड वन इज कि रिएक्शन भी लिख के दिखाओ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी रिटन, कैल्शियम प्लस वाटर, इट इज प्रोड्यूसिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। द रीजन व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑल्सो फ्लोट। तो कैल्शियम जो है वो फ्लोट क्यों करती है, कि जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जाम्पल लुक है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, मान लो ये कैल्शियम का पीस है, तो जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इसको कवर कर लेते हैं, और वो क्या करने लग जाती है, इट स्टार्ट्स टू फ्लोट। जैसे हम कैल्शियम को वाटर में डालेंगे, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इस चारों तरफ इकट्ठे हो जाती है, किसके, कैल्शियम के, और वो कैल्शियम क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। सेम रीजन इन केस ऑफ मैग्नीशियम। सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज कि वो एक्सप्लोजन क्यों प्रोड्यूस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक फायर क्यों हो जाती है, तो उसमें आप ये रीजन लिख सकते हो कि रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से हाइड्रोजन जलने लग जाती है जो रिएक्शन में रिलीज हो रही है, और उसकी वजह से एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होता है और फायर हो जाती है। सेकेंड, कैल्शियम फ्लोट क्यों करने लग जाता है जब उसको हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, रीजन इज हाइड्रोजन जो है, बबल्स जो है हाइड्रोजन के कवर द कैल्शियम मेटल ब्लॉक, और वो क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। तो आई होप दीज 3 reactions are clear to everyone. Now second category of metals which do not react with the cold water, जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म पानी के साथ। तो द मेटल इज मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर, हॉट वाटर, जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। Magnesium also react with the steam, but when metal react with the steam, they produce metal oxide. So what I have written, magnesium oxide. तो metal जो है, magnesium गर्म पानी से भी रिएक्ट करती है और steam से भी रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है, magnesium oxide plus hydrogen. So be careful what is written in the exam or what is written in the statement, कि गर्म पानी है या steam है। Next is those metal which react with the steam, कि जो steam के साथ रिएक्ट करते हैं। So the next 3 metal, aluminum, zinc and iron, they do not react with the hot water even with the cold water. ठंडे गर्म किसी पानी से रिएक्ट नहीं करते, उनकी अगर रिएक्शन करानी है तो हमको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, steam के साथ। So when you are writing in the exam, don't only write कि आप ऐसे लिख दो कि aluminium plus water और गैस। गैस कैन बी वेपर फॉर्म, तो वेपर के अंदर इतना हाई एनर्जी नहीं होती, हीट एनर्जी नहीं होती कि वो रिएक्शन को करवा दे, क्योंकि वाटर वेपर तो सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम हम लेके आते हैं तो वो वाटर वेपर से तो रिएक्ट नहीं करेगी, इट विल रिएक्ट विद द स्टीम। रीजन क्या है कि स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द स्टीम टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस
the same, they will release hydrogen gas. Similarly, zinc react with this steam to produce zinc oxide plus hydrogen gas. Iron, and iron should be red out, गर्म करके बिल्कुल उसको रेड कर लेना है हमने हीट करके. देन स्टीम इज पास, तो स्टीम हम ये जनरली बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है 1200 1300, उसके ऊपर जब हम पास करते हैं it will produce magnetite Fe3O4, and Fe3O4 is the oxide of FeO plus Fe2O3. तो मिक्सचर बन जाता है आयरन के दो ऑक्साइड्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटाइट या Fe3O4, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस. तो लास्ट कैटेगरी ऑफ मेटल्स, they do not react with cold water, hot water, तीनों में से किसी भी फॉर्म के साथ वो रिएक्ट नहीं करते. कौन कौन सी मेटल्स हैं, लेड, copper, silver, gold. So I hope this first part of this reaction of metal with water is clear to everyone कि metal water से react करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस. But there are certain metal that react with the steam to produce metal oxide. Aluminium, zinc, iron, magnesium, वो react नहीं करेंगे उसके साथ, वाटर के साथ. इवन दैट कोल्ड वाटर और हॉट वाटर वो क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे वो. सो दे विल प्रोड्यूस ऑक्साइड. सो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन वाटर के साथ, और वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस. और दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द डिफरेंट मैनर, हाउ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर. So during the first chapter of this chemistry portion we discussed displacement reaction. Highly reactive will displace less reactive. तो इसमें जितनी भी आप रिएक्शन देख रहे हो, हर एक के अंदर क्या हो रहा है, सोडियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, और क्या बना रहा है, NaOH. तो वो हाइड्रोजन बाहर होकर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस. पोटाशियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, कैल्शियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग जिंक, आयरन. तो ये सारी की सारी मेटल जो वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट कर रही है, आइदर इन वाटर फॉर्म और स्टीम फॉर्म, वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दीज रिएक्शन अंडर द डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी. सो हाउ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर. सो सी हियर केयरफुली, वन थिंग यू हैव टू लर्न इज मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर. मतलब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की. लेट्स टेक द एग्जांपल. आई हैव रिटन Na which is the symbol of sodium. The atomic number of sodium is 11. If I write the electronic configuration KLM 281. Clear to everyone? This is also the reason why sodium is highly reactive. Atomic number of sodium 11. Electronic configuration 281. So during the last year we also discussed कि कोई भी एलिमेंट है वो किस में आना चाहता है, दे वांट टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सभी स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8, और मतलब उनका ऑक्टेट जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. लेट्स सी इन केस ऑफ सोडियम 281. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, विच इज द लास्ट शेल, M. How many electron in the last shell, 1. So how it can complete its octet, कि सोडियम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा. There are two ways, losing the electron or gaining the electron. So to complete the octet, what is the easiest process? It will lose one electron. कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना एनर्जी वाइज इट इज मोर कंपेटेबल. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, रादर देन एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन, की 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और M के अंदर कितने हो जाए, 8 हो जाए. तो एनर्जी वाइज विच इज मोर कंपेटेबल, विच इज मोर इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8. So this is the reason why sodium is highly reactive. Next is the answer of this portion. So what happen, वाटर जो होता है वो वीक होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक, ये डिसोसिएट नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, H आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. तो एक H आयन है और OH आयन होता है वाटर के अंदर.
अब होता क्या है, अब H के ऊपर आप ध्यान से देखो, H के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कि हाइड्रोजन के अंदर कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी लूज हो चुका है तो वो H आयन की फॉर्म में आ गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ सीधी रिएक्शन, अब सोडियम जो है H आयन एंड OH आयन, तो वाटर को मैंने H प्लस OH आयन की फॉर्म में लिखा है। सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, कि सोडियम क्या करना चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो होता क्या है, जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेट अस अज्यूम दिस इज द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम, जब वो पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर क्या होता है, H प्लस आयन, H प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 1 की, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो वो H आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है जो सोडियम ने लूज किया उसको गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन एटम। नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर, हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म, अकेला नहीं रह सकता हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन 2 बार होगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। सो हाउ टू राइट दिस, बिकॉज वाटर हैव H आयन एंड OH आयन, कि पानी के अंदर क्या होते हैं, H आयन होते हैं और OH आयन होते हैं। मेटल क्या होते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, they will lose electron and that lost electron will be accepted by the hydrogen ion of the water and will be converted into hydrogen gas. That's how sodium displaces hydrogen from the water और उसकी क्या बन जाती है, हाइड्रोजन। कि सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, जो वाटर का H आयन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। सेम रीजन इन केस ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कि सेम ये सारे के सारे मेटल जो होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको कौन गेन कर लेता है, पानी के अंदर जो H आयन होता है, और वो गेन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को वाटर का H आयन गेन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन गैस में। अब जब H आयन को वो लूज कर देगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी है, Na+। अब वो पानी में से हाइड्रोजन कहाँ चली गई, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गई। अब पानी में क्या बच गया, OH आयन, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया, Na+। तो उसके बाद क्या होगा, ये Na+ पानी के OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। So if someone asks you how this reaction takes place, you can write this mechanism. सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, वाटर के H आयन ने। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। जो बचा हुआ OH आयन है वो सोडियम क्या है, माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। So that's how this highly reactive metal react with the water. One more question that can come from this topic is reaction of metal with the water. The last part is these metal, lead, copper, silver, gold, they do not react with the any form of water. कि वो किसी भी फॉर्म के वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, इवन विद दिस थिंग। द आंसर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज वेरी पुअर इन केस ऑफ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे सोडियम क्यों रिएक्ट कर पा रहा है इसके साथ, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो वाटर एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर का H आयन। लेकिन ये जो मेटल है, यू कैन राइट एट द एंड कि व्हाई दीज, यू कैन राइट हियर कि व्हाई दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और इवन विद द थिंग, बिकॉज देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज वेरी पुअर, कि उनकी जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बहुत ज्यादा कम होती है। एंड यू विल ऑल्सो बी फेमिलियर विद दिस टेंडेंसी कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है आफ्टर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। I think in one of the topic we have already discussed the reactivity series of metal.
we will again discuss in the later part of this chapter. So one more thing that you have to do, you have to write the reason here कि why they do not react with the steam or any form of the water, because their tendency to lose electron is very poor in comparison to these other metals, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, zinc and iron. So I hope this second chemical reaction of metal is clear to everyone. If you still have any doubt, you can write in the comment section. So now I will conclude what is written here. Reaction of metal with the water. Metal water से react करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है. जो मेटल स्टीम से रिएक्ट करती है वो ऑक्साइड बनाती है, लेकिन दोनों केस में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस. तो देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरी की कौन सी मेटल्स हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं. सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये मेटल वो हैं. मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं. दो metal which react with the steam, aluminum, zinc, iron, and certain metal which do not react with the any form of water. And the next part is how they react with the water to give hydrogen gas. तो कैसे वो डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है? वाटर का H आयन, और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस. So this is what all about the reaction of metal with the water. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.